Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? Fine. I hope you will be fine. I'm your teacher, Sarvasi. Dear students, as you know that in the last lecture, means from the very first chapter, I told you that I just uh, have done the word introduction from the very first chapter by the name of word Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the model of the tolerance. And as you know from today and from there to inshallah we're going to word to make it more extent. And your word start from that where we have to be left that. बेटा जिस तरह मैंने आपको बेटा पिछले जो इंट्रोडक्शन की क्लास थी बेटा मैंने आपको उसमें बताया था कि बेटा जिस तरह बेटा SMS स्कूल सिस्टम में बेटा बाकायदा ऑनलाइन जो क्लास से बेटा उसका आगाज़ कर दिया बेटा और मैंने आपको बेटा उस फर्स्ट चैप्टर में बेटा ये बताया था इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम द मॉडल ऑफ द टॉलरेंस। तो बेटा जहाँ पर बेटा हमने छोड़ा था सो वही से बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे। सो आई वांट दैट यू हैव got your own book, okay, and look at the book to be read that where I'm going to start. You should be try and okay, the most important thing that you have what your means pen or pencil to be write the word the meanings of that to be understand that the word very well and to go to make clear your concept. So let's get the book better come to the point and now we're just going to start, okay. Bismillahirrahmanirrahim. It is his word tolerance that will let him word forgive his worst enemies. But let me revise this word, this sentence again, because it's a very important sentence. That this sentence tells word about the word, the character or what the tolerance of what Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. बेटा जिस तरह बेटा ये मैंने सेंटेंस क्यों रिवाइज किया, ये इसलिए रिवाइज किया बेटा कि मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा ये नबी इस्लाम की बेटा बर्दाश्त थी, उसकी तहम्मुल थी बेटा कि उसने बेटा क्या किया अपने जो बदतरीन द वर्ड ऑफ वर्ड मींस वर्ड्स that is going to be called what? A word of degree, the superlative degree of adjective. Here this word show the word, the tolerance of the word of Muslim. It means he is the word, the greatest personality of the world. That he word forgive. The word of words means बदतरीन दुश्मन। तो मेरा ये नबी इस्लाम क्या थी मेरा उसकी बर्दाश्त थी, उसकी तहम्मुल थी, उसकी किरदार था दुनिया को बनाने के लिए तमाम इंसान के लिए बेटा कि उसने क्या किया कि बेटा अपने जो क्या थे अपने जो बदतरीन दुश्मन थे बेटा नबी इस्लाम के उसको भी माफ किया। what they have done, what they have committed, but in spite of all this they forgive them to make him to be reason and forgive him. That's called what? The tolerance. इसको बेटा बर्दाश्त कहते कि इन लोगों ने नबी इस्लाम के क्या साथ क्या क्या किया, फिर बेटा नबी इस्लाम ने क्या किया उनको बर्दाश्त किया अच्छी तरीके से। ये बेटा हम सब के लिए बेटा एक सबक है नबी इस्लाम की जो किरदार है बेटा इससे बेटा हमें उससे बेटा हमें क्या इस पर हमें अमल करना चाहिए। We should be acted upon. This is going to be called what? The passion. Next, truly he is a word and action of word tolerance, forgiveness, patience and word compassion. बेटा नबी इस्लाम की बेटा जो क्या है जो सब्र है बेटा उस सारी दुनिया के लिए बेटा क्या एक बेहतरीन हमदर्दी की मिसाल है बेटा, सब्र की मिसाल है। द वर्ड ऑफ पैशन मीन्स हमदर्दी, फॉरगिवनेस माफी। तो बेटा नबी इस्लाम का क्या बेटा वो तमाम जहान के लिए एक बेहतरीन नमूना है किसका? माफी का बेटा, हमदर्दी का, सब्र का, बर्दाश्त का, तहम्मुल का। We have to take this word and to be adapted our life. Inshallah, it is a leading life for the whole creature, for the entire world of the human of this life. तो मेरा वो उसकी क्या थी वो हमारे लिए क्या है एक बेहतरीन मिसाल है माफी के, बर्दाश्त के और हमदर्दी के। नबी इस्लाम से बेटा हमें क्या सबक मिला? यही सबक मिलता है बेटा तमाम दुनिया के लिए। The Holy Quran describes it as Rahmatul lil Alameen. Did you get that? Who describes the Quran? Not in a common book. Means the book of Allah, it has been described. And the word Rahmatul Alameen, the Quran ने नबी इस्लाम को रहमतुल आलमीन
बेटा इनको कहा जाता है रहमतुल आलमीन का मतलब है तमाम दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। अगर आपको याद है बेटा मैंने पिछले कहा था कि सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बेटा बल्कि तमाम चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो चाहे वो ईसाई हो चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते बेटा तो ये नबी इस्लाम उसके लिए क्या है रहमतुल आलमीन है बेटा। Okay, let's move on. While preaching Islam in Mecca, the Quraysh ostracized him and were his family, Banu Hashim. Beta, you know very well what happened, what the Quraysh did with him. बेटा आप लोग अच्छी तरह से जानते बेटा जब नबी इस्लाम क्या थे मक्का में थे तो बेटा मक्का वाले नबी इस्लाम के साथ क्या किया। The word ostracized means जिलावतन exile उनके साथ बेटा क्या किया मतलब उसके साथ बदसलूकी की और बेटा उसको क्या किया अपने ही बेटा जगह से उसको क्या किया जलावतन करी। द वर्ड ऑफ स्ट्राइमीज जलावतन करना उसको जलावतन कर दिया उसके बेटा उसके फैम खानदान को जिसका नाम था बनु हाशिम who's a well known means family in the world and Arab in that time a prestige। तो बेटा ये वो लोग थे जिसने नबी इस्लाम के साथ ज्यादती की उनको क्या क्या जलावतन कर दिया। अब देखिए बेटा they lived and worked in a valley called Shabi Abi Talib तो बेटा वो मजबूर हो गया और एक वादी में रहने लगा। The word of valley means वादी जिसका नाम था शबी अबी तालिब। There was scarcity of food and water जहाँ पर बेटा the word of scarcity means किल्लत कमी जहाँ पर बेटा क्या थी किल्लत थी कमी थी खुराक की पानी की। आपको बेटा ये भी पता है बेटा you know very well that Arab is a word a desert country from the very starting and this should be your mind okay that we know all of the world now okay that water there is scarcity of the water and or in Arab बेटा आप लोग अच्छी तरह से जानते बेटा कि अरब में क्या बेटा वहाँ पर पानी की बहुत सख्त किल्लत है बेटा बहुत सख्त कमी है। तो बेटा जब नबी इस्लाम को दरबदर कर दिया गया तो एक ऐसी जगह थी एक वैली थी एक वादी थी जो कि चारों तरफ से बेटा पहाड़ थे जहाँ पर बेटा खुराक की नामो निशान पानी की नामो निशान नहीं थी जहाँ पर बेटा नबी इस्लाम को रहने पर मजबूर कर दिया गया। But it's the order of Allah। ये किसका हुक्म था ये अल्लाह का हुक्म था। The believers had no means of income and they were leading a very tough life for a period of their year। बेटा लोग जानते हैं कि वहाँ पर बेटा क्या था कोई जरिया नहीं था कमाने का कोई मजदूरी नहीं थी बेटा जहाँ पर बेटा जिंदगी क्या थी बहुत मुश्किल से मुश्किल होती जा रही थी बेटा किसके लिए बेटा नबी इस्लाम के लिए और बिलीवर द वर्ड ऑफ बिलीवर मींस ईमान वालों के लिए वो लोग जिसने बेटा नबी इस्लाम पर ईमान लाया था जो उसके बेटा क्या थे सच्चे फॉलोअर थे बेटा who are called the word the truly follower of the word जिसने नबी इस्लाम के बेटा हर मुश्किल में हर दुख में हर मुश्किल में तकलीफ में उसका साथ दिया and it's called word believer। तो बेटा जहाँ पर बेटा एक ऐसी जगह थी जहाँ पर बेटा कमाने या कुछ करने जरिया इस तरह नहीं था कि जहाँ पर वो लोग कुछ काम करें और उससे उसके बेटा क्या कुछ पैसे हासिल हो। तो बेटा वो लोग मुश्किलात से उसका सामना करने के बेटा एक बहुत बदतरीन जिंदगी थी बेटा बहुत सख्त जिंदगी थी उन लोगों ने उस पर मजबूर कर दिया। अच्छा बेटा ड्यूरिंग दिस सिचुएशन पीरियड ओके Muhammad was remained calm and tolerant and never thought about taking any sort of revenge। आप देखिए बेटा ये नबी इस्लाम की बेटा क्या थी क्वालिटी थी ये बेटा उसकी सब्र बर्दाश्त थी कि ऐसी हालात में बेटा नबी इस्लाम क्या थे बहुत खामोश बहुत पुरसुकून रहे ना उसके जहन में एक ख्याल आया कि बेटा एक ऐसे वर्ड के बेटा जो मक्का वाले ने उसके साथ किया बेटा उसके बारे में मतलब उससे वो इंतकाम हासिल कर सके नहीं बेटा उसके ख्याल में थोड़ा सा भी ये ख्याल नहीं आया कि उन लोगों ने जो मेरे साथ ज्यादा किए कि बेटा मैं उसके ख्याल में नहीं बेटा फिर बेटा उसके लिए दुआ करते रहे। ये थी क्या थी बेटा ये नबी इस्लाम की बर्दाश्त थी ये उनकी सब्र थी तहम्मुल थी बेटा जिससे बेटा हम एक सबक हासिल होता है बेटा। So I hope so that you have to learn inshallah from here where you have to stop from here to where inshallah you have to start a next lecture where you have to got some problem where you can share your problem okay where online class inshallah I will try my best to solve your problem okay thank you so much being with us thank you so much.